Now, before I'll start sharing and screen and continue with that, let me begin. Now, let's continue, everyone. All right. So, welcome all. My name is Pragnesh Shah, and today I am here to lead this webinar. And the choice we are discussing today is about the science. What scope available after the 10th in science? To be very specific, in science. So any of you who are coming to get the information about commerce or maybe about the arts or maybe about the other fields, then this is not the webinar for you. Still, you want to contribute to other students by knowing something in this webinar, you can distribute or you can contribute to their life, you can definitely be here. Most welcome. First of all, I would like to acknowledge each one of you to be here on my request. It was just 2 days back one thought came in my mind and I posted here and you people are here. You could be somewhere else. It's 8 o'clock. Maybe it's a dinner time for few families and you are here. I hope you are not eating and you are watching the video or listening to me. If you are doing that, please stop. It's a humble request. Because next 1 hour 30 minutes will definitely give a dent in your mind, that I guarantee. Yeah. I would like to acknowledge maybe कुछ students ये टाइम पे कुछ फैमिली ये टाइम पे कोई स्टार प्लस का कोई पॉपुलर सीरियल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट शायद वो देखते होते, राइट? बट देन यू आर नॉट डूइंग दैट एंड यू चूज टू बी हियर. आई रियली अप्रिशिएट and it makes something very exciting for me. And I give again an assurance that if you have missed something and you are here, that it will be worth to be here. Right? Let me begin with my some introduction. So my name is Pragnesh Shah. As I already said, I am an educator. I run coaching classes into the college sections, that is the first year to the final year in engineering and BSc in IT. So I have nothing to do with 11th and 12th coaching classes, first of all. So I am not here. मैंने ये पोस्टर में भी पुट अप किया था. I am not here to sell my product. In fact, I am not interested to disclose the name also, right? So that is very clear. But why that mind में एक thought आया, एक मैं भी parent हूँ आज, मेरा भी लड़का एक 10th पास करके ICSE बोर्ड से प्रमोट हो गया है. So his doubts, his friends' doubts, some of my extended family's doubts, some of my neighbors' doubts, which are common. And that put me that let's have a one common discussion platform. तो मैंने इसको forum भी नाम दिया और मैंने उसको बताया कि this is the one platform where you and me will discuss. हाँ, एक चीज मेरे में है कि 18 years से I am teaching. So those students who have done 11th and 12th and उसके बाद they came to my place for either engineering or BSc in IT, they share their life. As in, I am interested always in students' life. They share and they open up everything. So whatever उनका जो experience रहा है 11वीं 12वीं में और उनके coaching classes में, college में, उनके parents के साथ, you know, that all is there. And that put me that let's have one platform कि आपके seniors जिन्होंने मुझे share किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूं. सो सिंपली मैं ब्रिज बन रहा हूं बिटवीन द वन जनरेशन, दोज हु हैव कंप्लीटेड 12th लास्ट ईयर, ओके, एंड मे बी यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. सो एक चेक पॉइंट बनाया कि दिस आर द थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग दिस और दैट. दैट इज माई इंटेंशन. So I run in the coaching classes across 4 locations in Mumbai, from Andheri, Borivali, Vasai and Virar. I teach approx 1000 plus students across the year with the various category, with the various capacity, with the colleges and coaching classes. I used to visit for NMIMS as an BTech and MBA in tech for the programming language. I go to the various coaching classes to teach programming language. To my class also, I am the founder. So being a mechanical engineer into the IT industry, this is an amazing journey for me. And that I would like to definitely contribute to the young people.
On my personal life, I stay with my parents, with my wife and my two sons. It's a joint family. We enjoyed this last 1.5 years. I stay at Borivali. I have a passion of traveling. Now आप बोल रहे हैं सर ये क्या आप शेयर कर रहे हो? नहीं, I am trying to connect with you people. Okay, so I have a passion of traveling. I love to meet the people. I love to be with the people in their life, what they are dealing or what they are, something they are having some barriers in their life. And if I can break that barriers, I love to be. I run one social project in which I teach around 30 underprivileged people. Free of cost computers हम सिखाते हैं. This is my social project I started with. So this is what about me. Now I would like to maybe hear from each one of you आप क्या करते हैं, but then this is not the time for today at least. So today we will quickly क्या करेंगे हम लोग. So I got a basic things from you, different locations from the geography of the across Mumbai. Kalwa की क्या है वो बताया आपने? Kalwa ना? One person said that location is completely new for me. And यहाँ से Borivali, Andheri, and then Powai and different locations I can see. Absolutely clear. Wow. So let's begin. Before I begin, anyone wants to say anything? Yes, any of you? Those who are there here, any doubt you have? Anyone? Great. Thank you for responding, Dhruv. वरना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वन वे डिलीवर कर रहा हूं, सामने वाला लेक्चर सुन रहा है. सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हेन द स्पीकर इज आस्किंग एनीथिंग एंड एट द सेम टाइम बी फ्री. मैं मेरी पूरी पर्सनल लाइफ आपके सामने खोल के रख सकता हूं. And so do I am expecting from you also. So people, in whichever space you are, 10th board, SSC, CBSE and ICSE, सब लोगों ने declare कर दिया. I am very excited. And I don't know where you are, whether you are sad, whether you are happy, whether you are excited, whether you say, अरे यार पूरा साल मेहनत किया और पूरा अभी, all of a sudden you are not able to cope up the situation. Then it is perfectly fine. Okay, whatever the space you are. At the same time, today's webinar is for you and only you. It's not for me, it's not for my institute, it's not for anyone. It's only for you. You are my focus today. Okay, let's continue. So I'd like to share my screen. Just a moment. Here is. Let's continue. So today's overview, what are the options available in the science after the 10th? Few message to the parents as well as students from me. Certain questions and queries from you. I am more interested in the number 3, not 1 and 2. 1 and 2 is a one way I am delivering. मैं उसमें कम से कम time दूंगा definitely. So let's begin with the ride at how we are continuing with that. So after the 10th, most of the options which are very common, here are the options. Integrated 11th and 12th. मैं उसके ऊपर डिटेल में आता हूँ. 11th and 12th without integrated, मतलब आप कॉलेज से full time करोगे. Okay. Then joining the classes. Diploma engineering, you have a choice. 11th and 12th, not ICSE, mistake है, CBSE board, or 11th and 12th from IG or IB board for the higher studies in the abroad, right? So these are the choice available. Let's move quickly one by one. मैं as I said that minimum time में हम लोग ये complete करेंगे because these all informations are available in Google, right? At the same time, crisp करके मैंने यहाँ पे डाल दिया so that you can come up with the exactly doubts what you have. So majority of the students these days choose to join the coaching classes and integrated. अच्छा, किसी को language का issue है तो please बताना. Okay. As an integrated and the college name does not matter. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोचिंग क्लासेस वाले बताते हैं आपको कि हमको ये कॉलेज में जाना है, आपको उधर जाके फीस भरना है, तो यू सेड ये कॉलेज कहाँ आया, मैंने तो नाम ही नहीं सुना. ऑल्दो यू आर स्टेइंग इन अंधेरी फ्रॉम द कपल ऑफ ईयर्स और आपको अंधेरी का ही कॉलेज का नाम बताया जाता है विच इज नॉट पॉपुलर, राइट? तो नो वन आस्क यू फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव पास्ड 11th and 12th, राइट? सो
it's absolutely fine to go with the integrated. Yeah, these days it is a good choice to save the time as well as traveling as well as stress. Yes, there are certain point investment comes, पेरेंट्स अगर यहाँ है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है इंटीग्रेटेड में. Must opt when you want to pursue other career in your engineering, medical or other research related courses like BSc, MSc, MPhil, PhD. Okay, continue. A is a group where maths is for engineering, B is the group for bio for the medical and paramedical, C is the group for maths and bio both for the pharma based. So अभी A ग्रुप में जाते हैं, that is for engineering. This is I am talking about 11 and 12th with A ग्रुप जहां पे मैथ्स आएगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा एंड मैथ्स रहेगा, बायोलॉजी नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ और सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे लैंग्वेज कॉल हिंदी, इंग्लिश और वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस वन पॉइंट हियर. मुझे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आके बताते हैं कि सर हमने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था और आईटी नहीं लिया था एंड नाउ वी चूज आईटी इंजीनियरिंग, और इसके लिए हम लोग क्लासेस लगा रहा है कि हमको समझे. मतलब उनको ऐसा है कि मैंने 11th-12th में आईटी कंप्यूटर साइंस नहीं लिया तो अभी मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं समझेगा. नाउ दिस इज अ मिथ. कोई भी इंजीनियरिंग में first year is common to all the engineering, the syllabus and the subject. First. Second, if the syllabus is designed such a way that does not demand any background of programming language before you enter into the engineering. हाँ, अगर आप 12th के वेकेशंस में कुछ कर सकते हैं, that's great, but they don't demand. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, अगर आपने कंप्यूटर साइंस आईटी लिया 12th में और 11th में और आपको कॉलेज में एज एन इंटीग्रेटेड है अच्छा नहीं सिखाया, तो कुछ स्टूडेंट्स को एकदम से प्रोग्रामिंग से इंटरेस्ट चला जाता है एंड दे चूज कि अभी हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं लेंगे. नाउ दिस शुड नॉट हैपन. ये मेरे साथ काफी स्टूडेंट ने शेयर किया है एंड दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग. मान लेते हैं कि आपकी कॉलेज जो क्लासेस लिया, आपने कॉलेज लिया, उधर कंप्यूटर साइंस आईटी अच्छा नहीं कराया, इट इज एब्सोल्युटली ओके. Still you choose engineering in computers और IT और electronics. उसको आप एक पैरामीटर नहीं बनाना सिलेक्ट करने का. ओके, दिस इज माय रिक्वेस्ट. 12th बोर्ड आपको एग्जाम देना है, CET का एग्जाम देना है. These two are compulsory to go into the engineering for the Maharashtra state, right? JEE में दो एग्जाम्स आएंगे, मेन एंड एडवांस. मेन देना ऑप्शनल है लेकिन आप देते हो तो आपको शायद सीईटी में स्कोर कम आया तो मेन के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है. इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर एंड you want to note it down, in a first year engineering 85% of the seats are based on CET in Maharashtra and the 15% seat is for JEE mains. Okay, तो आपको JEE मेंस अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली. ओके, बट अगर इफ यू आर वेरी क्लियर कि नहीं भी मुझे मुंबई में ही कॉलेज में जाना है, महाराष्ट्र की ही कॉलेज में जाना है और मुझे बाहर नहीं जाना है, तो आपके लिए CET इज वन इनफ. दैट आई वांट टू पॉइंट इट आउट. तो वाइल सिलेक्टिंग द कोचिंग क्लासेस ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग आगे एक डिस्कशन करेंगे. So JEE main around 15%, as I said, that seats all over India. मतलब मान लेते हैं कि आपको राजस्थान की कोई कॉलेज में जाना है, कर्नाटका की कोई कॉलेज में जाना है, then on this basis you can apply to that college. क्योंकि आप आउटसाइडर के स्टेट्स वाले हो गए तो आप इसके बेसिस पे भी जा सकते हैं. हाँ, JEE advance is for pursuing in IIT, right? Let's go with the B group, biology, medical और paramedical. राइट, आई होप पैरामेडिकल अगर आप समझते हैं, जिसमें आप क्या बोल सकते हैं, डेंटिस्ट बोल सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट. डेंटिस्ट नहीं बोलना चाहिए, वो BDS आता है. इट्स कॉल्ड, मेरे हिसाब से पैथोलॉजी आता है, राइट. देन इट इज कम्स इन द काफी ब्रांचेस मेडिकल की है जो MBBS को छोड़ के है, वो सारी पैरामेडिकल्स में जाती है. सो दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स नहीं है. ओके, और
उनके साथ अगेन वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ जाता है, जैसे आईटी लेते हैं, नाउ डेंटल, बीएचएमएस में, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज द वन सिंगल पॉइंट एग्जामिनेशन कॉल्ड नीट. बोर्ड की एग्जाम क्लियर करनी है एज वेल एज नीट का स्कोर करना है. द फर्स्ट प्रायोरिटी कम्स कॉल्ड नीट. नीट ऑल ओवर इंडिया का कॉमन एग्जाम पैटर्न रहेगा, राइट, सेम सिलेबस. अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द आउटसाइड ऑफ द स्टेट, लेकिन वापिस आपके परसेंटेज ऑफ सीट्स कम हो जाएंगे. सो यू कैन अप्लाई टू द योर स्टेट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस. सी ग्रुप आता है जहां पे मैथ्स एंड बायोलॉजी आता है, वेयर वी हैव अ बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी. सो देयर यू हैव अ बायोलॉजी एंड मैथ्स. उधर नीट नहीं लगेगा. यू रिक्वायर्ड MHCET फॉर PCB एंड PCM, मतलब PC कॉमन हो गया, B एंड M आपको देना है, राइट. और अगेन मे बी कुछ कॉलेजेस ऑटोनोमस कॉलेजेस है, वो भी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करेंगे. दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर. ये ऑटोनोमस कॉलेजेस कम्स इन एवरी कैटेगरी, इवन बी में भी और इवन ए में भी. बी में नहीं, बी तो पूरा नीट बेस है, ए में डेफिनेटली रहता है. जैसे NMIMS इज वन ऑफ द कॉलेज, राइट, जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखता है. तो दैट इज देयर. सो मैंने बताया आपको एक इंजीनियरिंग, मैंने बताया आपको एक मेडिकल. मेरे सामने मैं चैट बॉक्स में जाता हूं. यस एवरीवन, मेरा स्पीड, इज इट मोर, इज इट ओके और इज इट लेस, एवरीथिंग इज क्या है, मुझे एक चैट बॉक्स में प्लीज रिस्पॉन्ड करना. इज इट फाइन, या इफ आई एम फास्टर देन आई विल गो विद द स्लो. थैंक यू आर्यन, इट्स ओके, एब्सोल्युटली परफेक्ट. थैंक यू एवरीवन. लेट मी मूव फर्दर. एंड देन आई विल गो विद द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जहां पे लिए हम लोग को क्या लगेगा, नाटा एग्जाम्स. ना उसके लिए क्या करना है, वापिस PCM तो आया and the main subjects, and apart from that vocational वाले सारे subjects आ गए. The most important is you have to apply for the board का exam score matters. Now मैं नाटा की फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, आई मीन आर्किटेक्चर की एडमिशंस की फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा, वो तो हम 12th के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट. लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 12th का स्कोर डायरेक्टली एडमिशंस में काउंट होता है. 12th का स्कोर इंजीनियरिंग में काउंट नहीं होता है. यू रिक्वायर्ड टू क्लियर विद द मिनिमम परसेंटेज बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड, राइट, 50%, 45% और 40%. उसके लिए हम आज नहीं बैठे हैं, सो उसको साइड में करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे यू हैव टू क्लियर कि आपका 12th का स्कोर मैटर करता है, एज वेल एज नाटा, राइट. नाटा इज अ वन नेम फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर. JEE भी एक देना होगा. जो आपका JEE उधर दिया था इंजीनियरिंग के लिए वो A था, इसको मैं B बोलूंगा. टू अपीयर एंड एडमिशन बेस्ड इज बेस्ट ऑफ द एंट्रेंस. JEE आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं एंड नाटा भी आप 2 बार दे सकते हैं, बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ द स्कोर प्लस 12th का बोर्ड. ये बेस पे आपका एडमिशन होता है. इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, आपका फ्यूचर में बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर में जाएंगे, यू नीड टू हैव अ क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू लॉन्ग आवर्स टू वर्क. इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है. वन ऑफ माई नीस इज डूइंग, वो जब भी आर्किटेक्चर में 3 साल से है, उससे मुझे पता चला कि हमने इंजीनियरिंग में क्या किया और व्हाट शी इज डूइंग इन आर्किटेक्चर. मैं आपका 2 मिनट और लूंगा कि इंजीनियरिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थियोरी एंड प्रैक्टिकल, लेकिन आर्किटेक्चर इज 100% प्रैक्टिकल, देयर इज नो थियोरी. मतलब आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन माय नीस सेड दैट यू डोंट हैव अ थियोरी पेपर. द होल सब्जेक्ट इज मेड टू हैव अ मॉडल्स बनाना, क्रिएटिविटी ऑन योर लैपटॉप एंड द रियल वर्ल्ड में आप पूरा वर्क कर रहे हैं. सो इफ यू हैव अ लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स टू स्टे and over the night you have to work, ये सब आपकी कैपेसिटी है, then you choose the architecture. ये point of time आपको 11th में right now you have to decide, because once you take it and admissions on the CET base for the engineering, you cannot roll back, है ना. ऐसा हो सकता है कि शायद आप नाटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इंजीनियरिंग का CET देते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं है. आई मीन आई डोंट वांट यू टू डिसाइड दैट कि दोनों में कीप द लेग्स, यू नो, जिसमें अच्छा आया कर लेंगे, उसमें मजा नहीं है. राइट नाउ यू डिसाइड कि आइदर विल गो फॉर नाटा और आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग. ओके, बैचलर ऑफ साइंस इज अनदर चॉइस.
हर स्टूडेंट अपनी करियर इंजीनियरिंग आईआईटी मेडिकल में ही बनाएगा ऐसा नहीं है। सेकेंड, बाकी सारे कुछ नहीं करते ऐसा भी नहीं है। सो लेट इट बी वेरी क्लियर, आई कैन मेक माई करियर बाय बैचलर ऑफ साइंस फॉलोड बाय इन माई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी आईटी कंप्यूटर साइंस, और नया आ गया है एक डेटा साइंस, इसमें आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, 11 एंड 12th नो सीईटी हियर, 12th का स्कोर फॉर सम कोर्सेज, ओनली मैथ्स का स्कोर फॉर सम कोर्सेज, जैसे आईटी इज बेस्ड ऑन मैथ्स स्कोर, okay, and few colleges again may take their own entrance examinations for selecting. Only BSc से career नहीं बनता, you will definitely go for further called Master of Science followed by MPhil followed by PhD, right? And that is a research based subject, right? So of course entrance examinations नहीं आता, लेकिन ये myth आपको definitely निकालना होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बीएससी ग्रेजुएट्स देखे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ बाय इवन जॉब एंड बाय इवन मनी. सो दिस इज द hierarchy which you can do. There is a choice called diploma engineering. Before again I'll go to the chat box, anyone has anything to say, आपके सारे doubts please note it down in a piece of paper, एक साथ एड्रेस करते हैं, बिकॉज इन बिटवीन अगर डाउट सॉल्व करना चालू किया तो फिर वो लिंक चला जाएगा. एंड आई एम वेरी कमिटेड विद द टाइम, वेरी शॉर्ट में वन वे डिलीवरी जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा. आई वॉन्ट टू लिसन मोर फ्रॉम द पीपल दैट सर दिस इज द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू लर्न, और मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे. एंड बाय द वे आई एम नॉट हियर टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, बट यस I will put you in inquiry that this is the 1, 2, 3 way you can decide. Decision will be definitely yours, right? All right. So I hope none of you have any issue as of now, and I'll go further with हम लोगों ने 12th 11th का क्या देखा, तो 11th and 12th हम लोगों ने देखा साइंस के साथ, जिसमें आप PCM B और आर्किटेक्चर वाला देख सकते हैं. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स कि समझो मुझे 11 एंड 12th नहीं करना है, एंड आई वांट टू गो फॉर द अनदर चॉइस दैट्स कॉल्ड डिप्लोमा इंजीनियरिंग. सो हियर इज डिप्लोमा इंजीनियरिंग. ओके, सो क्या कर सकते हैं आप, एडमिशन इज बेस्ड ऑन 10th स्कोर. नाउ ये साल मिस्ट्री है, एवरीवन आप में सब एक ही बोर्ड पे बैठे हैं. लेट द बोर्ड डिक्लेयर देयर रिजल्ट. Okay, then the diploma engineering का admission process will begin, and वो हमारा काम है ही नहीं, वो उनका काम है. Let them declare the score, we will fill up the form and let the college decides, let the university decides कि आपके स्कोर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है. राइट, दिस इज नॉट वन टाइम मीटिंग. हमारा वेबिनार कोई आगे नहीं होने वाला है, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द नंबर. अगर आपको 1.5 month के बाद 10th का रिजल्ट आया एंड यू वांट टू परस्यू एन एडमिशन इन डिप्लोमा, आई विल ओपनली प्रोवाइड माय नंबर. यू कैन व्हाट्सएप मी. आई रिक्वेस्ट you can WhatsApp me rather than call. Okay, so which are the branches? Maybe you can choose civil, computer, electronics or data science. 3 years, 6 semesters. Each semester is of 6 months to study for technical subjects like mechanics, basic electrical, maths, programming and practical related. यहाँ पे वो सारे रियल टाइम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आ जाता है. फायदा क्या है, दोस्त पेरेंट्स अगर कोई अटेंड कर रहा है, मुझे ये नहीं पता कोई पेरेंट्स है क्या आज इसमें. कैन एनीवन रेज योर नेम इन द चैट बॉक्स कि यस पेरेंट्स भी है साथ में मेरे. यस, एनीवन एनीवन. मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे थे वीडियो में ज़्यादातर. यस, पेरेंट्स किसके हैं यहाँ पे है? एनीवन पेरेंट्स आर अटेंडिंग? नो पेरेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स है यहाँ पे. कैन आई कंसिडर ओनली स्टूडेंट्स है? यस, पेरेंट्स आर देयर. जॉली सा, ऑल राइट, थैंक यू. जस्ट और एनीवन? नो, ऑल राइट, आई गॉट इट. यस, माय मॉम, दैट इज त्रिशा, थैंक यू. ओके जय, आई गॉट इट. ओके, तो काफी पेरेंट्स है. तो दिस इज फॉर द मैसेज फॉर द पेरेंट्स एवरीवन दैट मे बी. So now we are not here to discuss your financial status, right? But then yes, 11th, 12th is a little bit costly.
उसके एक एक कॉस्ट है, राइट। एंड अगेन जब भी मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल। मोबाइल मार्केट में क्या प्राइस में मिलता है, यू बेटर नो, यू पीपल आर रियली क्रेजी अबाउट द मोबाइल, राइट। 8,000 6,000 MI और सैमसंग का लेके 60,000 1 लाख तक के सारे मॉडल्स आपको पता है, राइट। एग्जैक्टली कोचिंग क्लासेस में ऐसा है, राइट। एक सब्जेक्ट आपको 40,000 में भी मिलेगा एंड एक सब्जेक्ट 1,50,000 में भी मिलेगा। दिस इज द वेराइटी यू हैव। एंड मैंने कहीं ऐसे भी इंस्टीट्यूट देखे जो 50,000 में सारे सब्जेक्ट्स करा लेते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। बाय द वे उधर हम लोग को नहीं जाना है, बट देन यस, फीस इज द मैटर। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट जबरदस्ती वो स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर ले रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोई पेरेंट्स अपना पास्ट लेके चल रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, प्लीज पेरेंट्स डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। कभी कभी कोई पेरेंट्स का ऐसा ख्वाहिश रहता है कि मेरा बच्चा साइंस करना चाहिए, इंजीनियरिंग ही करना चाहिए, राइट। अगर ऐसा है तो एटलीस्ट उसको 11th-12th का स्ट्रेस नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है। यू कैन ऑप्ट फॉर ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना, यू कैन ऑप्ट फॉर 11 एंड 12th छोड़ के सीधा डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, राइट। मूविंग नेक्स्ट, so you can get the direct admissions into the degree engineering in the second year if you have completed TY diploma successfully with a good score. इवन तो आपका स्कोर थोड़ा कम आया तो आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा, 1 साल ज्यादा होगा। सो आपका इक्वेशन क्या बैठता है, 10 + 3 years का डिप्लोमा, 3 years का डिग्री, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 + 4 years ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग। मतलब आप 11th-12th कर लो और 4 साल की डिग्री कर लो, या तो 10 करो, 3 years डिप्लोमा करो एंड 3 years की डिग्री करो, राइट। लेकिन उसके सामने यू हैव टू चेक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, यही हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रिफ्लेक्ट हुआ। बहुत सारे फैमिली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुंबई, हेलो एवरीवन, इंडिया इज नॉट ओनली बिलोंग्स टू मुंबई। व्हेन आई एम एड्रेसिंग राइट नाउ, महाराष्ट्र में बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जहां पे फैमिली डिमांड्स इमीडिएट अर्निंग फ्रॉम द स्टूडेंट। इन दैट केस स्टूडेंट 3 years का डिप्लोमा करके डायरेक्टली जॉब पे लग सकता है। नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही आने वाला है, 4 years का कोर्स। पहले क्या होता था, बच्चा 2nd year 3rd year में फेल, वो इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसकी डिग्री क्या मिली, कुछ नहीं। अभी क्या होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अगर उसने 2 years किया और मान लेते हैं 3 years किया तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा अवार्ड, 1 year किया तो उसको क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। मतलब एवरी लेवल पे वो क्विट कर सकता है ड्यू टू XYZ रीजन, लेकिन उसके हाथ में एक डिग्री मिलेगी, ना कि फेल वाली डिग्री, ओके। सर्टिफिकेट इन सो एंड सो ऐसा डिग्री मिलेगा। तो ये डिप्लोमा में सालों से है, ऑल राइट। मूविंग फर्दर, फीस फॉर द डिप्लोमा इंजीनियरिंग विल बी इन द रेंज ऑफ 60 to 80 नहीं होगा, इट कैन बी 1 lakh ऑल्सो, बट आप ऐसा समझ के चलते यहाँ 40 भी होगा, उधर 1 lakh भी होगा, into 3 years। इन इंडस्ट्री ऑलवेज रिकग्नाइज एज द मोर नॉलेजेबल पर्सन, बिकॉज उन्होंने जो डिप्लोमा में सब्जेक्ट सीखा है वही डिग्री में थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। सो यू नो दैट जो सब्जेक्ट आप 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, हाउ यू विल गिव इन द परफॉर्मेंस इन द इंडस्ट्री, राइट। कुछ लिमिटेशंस आपको मैं डेफिनेटली वार्न करूंगा, वेरी डेंजरस एंड कीप अलर्ट, क्रिटिकल है ये। 11th-12th में बहुत चॉइस मिलती है लेकिन डिप्लोमा में नहीं मिलती, राइट। द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे डिप्लोमा करना है, इट इज यू हैव टू सिलेक्ट आइदर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सो एंड सो, जो भी करना है। वंस यू सेड दैट मुझे मैकेनिकल करना है, देन आपकी करियर आप मैकेनिकल में ही बनाओगे। ये किसी के लिए प्लस पॉइंट भी है बाय द वे, जिसने फिक्स कर लिया है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग, तो वो डिप्लोमा सिविल करेगा, डिग्री सिविल करेगा। जिसको कंफ्यूजन है कि नहीं मुझे नहीं पता कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहिए, देन यू गो फॉर 11 and 12th। अच्छा, 11th-12th किया, आपको अच्छा स्कोर नहीं आया, आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो आप BSc भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ डिप्लोमा में नहीं होता। अच्छा, अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CET क्लियर कर दिया, बेसिक 12th स्कोर आ गया, आई गारंटी एज ऑन टुडे ये सिचुएशन है कि कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है। नाउ इसका कोई मीनिंग ऐसा भी बना सकता है कि क्या कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है मतलब इंजीनियरिंग डिमांड में नहीं है क्या, राइट।
सो नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ओवर, जैसे अगर आप नोटिस करोगे रियल टाइम में, अगर आप घर से नीचे उतरोगे और आप 1 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस में, आप 1 किलोमीटर में आप बाइक कार लेके चले जाओ, दिस डेज आपको डेंटिस्ट काफी मिलेंगे जो अर्लियर डेज में नहीं मिलते थे, राइट? सो वेरी सिमिलर, बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जहां सीट्स खाली है, तो एटलीस्ट आपका इंजीनियरिंग तो अच्छे से हो जाएगा, राइट? अगर कॉलेज अच्छी नहीं मिलती है, मे बी यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ विथ सम एक्स्ट्रा कोर्सेज, विथ बाय सम कोचिंग, सो दैट आपका स्किल एक्स्ट्रा पावरफुल बना दिया, सो दैट इज वेरी वेल पॉसिबल, राइट? यू विल गेट द, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में बीएससी में ले सकते हैं एडमिशन, फॉलोड बाय थर्ड ईयर करोगे तो आपका ग्रेजुएशन माना जाएगा। वंस यू आर ग्रेजुएट, you can apply for all the entrance examination like UPSC or any government courses. Okay. Yes, average package, first salary, ये स्टूडेंट्स को बहुत क्या बोलते हैं उसको, डिमांड में रहता है कि सर पहला सैलरी क्या मिलेगा, जो कि मैं ऐसा बिलीव पर्सनली करता हूं कि यू शुड नॉट आस्क अबाउट द फर्स्ट सैलरी। व्हाई? बिकॉज आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, then how can you claim that you should get this much salary? Ask your parents, right? मैं ये स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, ask your parents उनका पहला सैलरी क्या था और आज सैलरी क्या है, and how they exponentially expanded themselves. तो उन्होंने कैसे अपने आप को इतना काबिल बनाया, वैसे आप भी बना सकते हो अपने आप को, राइट? तो जस्ट मैं एक एवरेज आपको बताऊंगा, डोंट बी एग्जैक्ट फिगर विद दैट। मैं नीचे से शुरुआत करता हूं, जब भी मैं ऐसा बोलता हूं नीचे से, तो मुझे नहीं पता चलता कि हाउ आप उसको सुनते हो। फॉर मी ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर आर द ह्यूमन बीइंग हु आर स्टेइंग इन देयर सोसाइटी। ऐसा जरा भी मेरे लिए नहीं है कि ये टॉप फ्लोर है मतलब लेविस है, मतलब वो रीच है, और ग्राउंड फ्लोर में है मतलब उसने सस्ता फ्लैट खरीदा है। नॉट एट ऑल, both are with their capacity, they are living their life, right? तो BSc डिप्लोमा में अगर लेके चलूं, डिप्लोमा के बाद तो अप्रॉक्स 2.2 से 6 lakhs का पैकेज मिलता है। वेरी क्लियर, आई वुड लाइक टू से, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, ऑल गोज विथ यू, हाउ यू परफॉर्म योर सेल्फ। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग डिग्री में करते हैं 2.2 से 12 lakhs। ये मैंने जेनरिक बताया। आपकी बैच में 60 स्टूडेंट्स है, मुझे वो टॉप 10 स्टूडेंट्स का सैलरी नहीं बताना है कि जो लोग को 12 lakhs मिला या 22 lakhs मिला, मुझे वो लास्ट 10 का भी सैलरी बताना है। इसके लिए मैंने 2.2 से 12 lakhs लिखा है। एवरीवन, IIT में डेफिनेटली यू विल गेट द हैंडसम पैकेज कॉल्ड 10 to 40 lakhs, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। मैंने वापिस एक एवरेज लिखा है। आर्किटेक्चर वेरी लेस बिगिनिंग बट वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर इफ यू हैव अ गुड क्रिएटिविटी। स्टार्ट कम है, आगे जाके एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। आर्किटेक्चर 5 years का है, इंजीनियरिंग 4 years का है, ये भी आप ध्यान रखना प्लीज। फार्म, बी फार्म इज अराउंड 2 to अगेन 12 lakhs कम्स। MBBS का सैलरी मुझे लिखना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत रेयर MBBS जो आपको मिलेंगे जो खाली MBBS करते हैं, वो शायद MD करते ही है। बट अगर मान लेते हैं कि कोई फैमिली में ऐसा है जो MBBS के आगे नहीं जाना चाहता, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, प्राइवेट जॉब मिल सकता है, वापिस 6 to 12 lakhs की मिनिमम पैकेज। ये हम लोग फर्स्ट सैलरी बोल रहे हैं, नॉट द लास्ट, नॉट द मीडियम, जस्ट बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूं। हायर स्टडीज आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे दिस आर द थिंग्स, मैं आगे क्या कर सकता हूं, उसके लिए मुझे अभी 11th का डिसाइड करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि मैं डिग्री के बाद क्या कर सकता हूं, बेस्ड ऑन दैट मैं 11th में जाना चाहता हूं या डिप्लोमा में जाना चाहता हूं। तो उनके लिए मैंने एक स्लाइड्स रख दिया कि समझो आपको फॉरेन में जाना है, लेट्स से US, UK, ऑस्ट्रेलिया, तो आप IB बोर्ड से 11th 12th कर सकते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन अब्रॉड कर सकते हैं, राइट? इफ यू आर डूइंग BSc, आप MSc, MCA और MBA कर सकते हैं, MPhil, PhD कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग BE तो आप MTech और ME कर सकते हैं। BE मतलब BTech समझ लेना आप लोग, और वापिस MBA कर सकते हैं। B Pharm में भी आप M Pharm कर सकते हो, वापिस MBA कर सकते हैं।
MBBS to MD हो गया, और एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करियर ओरिएंटेड, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेटा साइंस, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मे बी एथिकल हैकिंग, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड मैनी मोर, राइट. विच आर द फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टडीज में जाने के लिए यू हैव अगेन चॉइस, लाइक मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं इन यूएस, ऑल द कंट्रीज. फॉरेन स्टडीज के लिए यू हैव टू गिव द सर्टेन एग्जामिनेशंस कॉल्ड GRE, TOEFL एंड मे बी IELTS. Eligibility will be 12+4 for the major countries, but I am not denying that these days they allow 12+3 also, right? These are the certain. But again, for the parents, this is the minimum fees per annum that you have to bear. Great. These are the exams. Financially 1 year itna aapka jayega. Yes. Whenever you are doing any of the course, I am about to complete what I have to share with few things. Few things मैंने creativity के लिए रखा है, जहां मैं आपके साथ interaction करना चाहता हूं, जहां पे मुझे आपका व्यू चाहिए. ये मैं one way delivery कर रहा हूं, जो आपको शायद Google में मे बी 3, 4, 5 hours या मे बी 1, 2, 3 days में मिलेगा. मैंने एक जस्ट स्लाइड में डाल दिया. एंड अगेन नो नीड टू नोट इट डाउन. ये स्लाइड्स आपको शेयर हो जाएगा, जो आपके ईमेल आईडी आपने स्पेसिफाई किया उधर आपको मिल जाएगा. So maybe you are doing undergraduate right now. Graduate internship is the most important, which I would like to share, that आपको complete करना चाहिए. Okay, you can do the masters. These days is the normal thing कि parents इतने sufficient है, efficient है कि वो students को expect करते कि आप masters करो. मैं मास्टर्स करने से पहले डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन को कि आप इंटर्नशिप कराओ फिर मास्टर्स कराओ, because that gives us some additional advantage of practical knowledge, right? MBA गलती से भी फ्रेशर्स को मत कराओ, पहले एक जॉब करना चाहिए फिर MBA करेंगे, that gives the result. I hope everyone knows that MBBS को क्या काम का, अगर उसने वो 1 year का उसका इंटर्नशिप नहीं किया है. CA क्या काम का, CA का तो कोर्स ही अलाउड नहीं है अगर आपने कॉमर्स में आपने अगर वो इंटर्नशिप नहीं किया है तो, राइट? जिसको वो आर्टिकलशिप बोलते हैं. A small message to the parents from me कि आप तारे जमीन पर हर 6 महीने में देखो, बिकॉज हर बच्चा सेम नहीं होता, और उसके जैसी बहुत सारी मूवीज आपको गूगल में मिल जाएगी. प्लीज फाइंड इट आउट. माई कंसर्न इज सिंपल, हर बच्चे को सेम कंपेयर मत करो. दिस इज अगेन माई मैसेज. आई डोंट नो, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मेरा जस्ट एक मैसेज है. प्रोवाइड फैसिलिटीज टू डू द प्रोजेक्ट, समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप इनटू द वैकेशंस. Now, when I say into the vacations, of course, it is the 12th ka vacation minimum age. You should be 18 plus to do the any internship. But I love if you can do really in the 12th vacations में भी एक छोटा सा internship करोगे तो it will be great. College में हर summer vacations में you should do the internships. This is what the US people are doing because they are really good at the work. And then the research comes into the mind. That's why they people are more on entrepreneurs. राइट अगर आपने बहुत कुछ फील्ड में काम किया है तो आपके आइडियाज आएंगे आपको. यस, गिव द 15 minutes एटलीस्ट टू योर चाइल्ड टू चेक योर प्रोग्रेस, गोल्स, एक्टिविटीज एंड एग्जाम्स. ऐसा ना हो जाए मेरे पास, सिंस आई एम रनिंग द कोचिंग क्लासेस एवरीवन, एग्जाम्स के 10, 15, 20 दिन पहले अचानक से पेरेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं. हेलो सर, आई एम द पेरेंट ऑफ सो एंड सो सन और डॉटर, मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो आई आस्क वेयर यू वेयर, आई अपफ्रंट आस्क वेयर यू वेयर, आप कहां थे इतने दिन भाई, राइट? तो ऐसा पेरेंट नहीं बनना प्लीज, राइट? इट शुड बी वीकली, इट शुड बी डेली और इट शुड बी क्वार्टरली, जैसे आपका स्केड्यूल में बैठता है. आई नो इन मुंबई इट इज वेरी चैलेंजिंग टू डू द वर्क एंड टू हैंडल विद द ऑल एक्टिविटीज. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट that is not the way you can run away also, right? Child is yours, it is absolutely your responsibility. Make a partnership, give 1 hours to 3 hours on the holidays at least करो भाई. मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो हॉलीडेज में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, but they are not giving the time to the child. This is a strong message from me, right? And you definitely should encourage the child rather than criticize. ये मुझे नहीं बताना है, राइट? मैं कोई अलग में नहीं जा रहा हूं, बट या मैं फिर भी चाहूंगा कि यू शुड बी ऑलवेज अ फ्रेंड विद द 12+ पीपल.
दिस इज द मैसेज टू द स्टूडेंट्स. लेट्स गो विथ मेक द यूज ऑफ प्लानर डायरी. बहुत लिमिटेड में देखता हूं जो स्टूडेंट्स कैलेंडर को यूज करते हैं. जब भी मैं कैलेंडर डायरी बोलता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल आर डिजिटल. ठीक है, मेरा कैलेंडर देख लो भाई अगर चाहिए तो. आई एम यूजिंग द हाईएस्ट ऑफ माई मोबाइल्स कैलेंडर. सो मोबाइल का कैलेंडर यूज करो. बट आई नो व्हाट टुमारो 10 o'clock आई हैव, राइट? सो दैट इज आई एम एक्सपेक्टिंग. Before going to sleep, one must have a write it down the plan for the next day, which makes you clear क्या करना है. Amazing strategy if you follow. I am doing this since last more than 6 years. Everyone clear रहता है exactly how my next day will be. Every morning use some affirmative statements or something. मैं अभी मेरे लैपटॉप को रोटेट करके मेरे नोटिस बोर्ड पे जो है वो शायद आई वुड लाइक टू शो यू कि दिस इज व्हाट आई कैन सी. मेरे सामने दिखता है मुझे. Yeah, share everything with your parents. This is a message to the student, friends, and communicate. Don't hide so that ज़्यादा बड़ा issue हो जाए तो वो late ना हो जाए. You have 24 hours. 8 hours का sleep मैं consider करता हूँ. ऐसा कोई rule है नहीं. 6 hours is more than enough. But still ऐसा पकड़ के चलते हैं जो काफ़ी लोग बोलते हैं WhatsApp का ज्ञान वगैरह की 8 hours का sleep होना चाहिए. 3 hours आपका निकाल दिया. Breakfast, lunch, dinner and other activities. You have a 13 hours. Spend your vacation with your internship, small or big. ये 13 hours कैसे यूज करोगे? That I am more interested for your college, tuition, personal reading, activity, homework. This is your life. ये 13 hours में you can create really something, which makes your career for the next 2 years. If you are doing 11th, 12th, if you are doing diploma next 3 years, and if you're doing anything else, still your 2 years will be very critical. TV and the mobile is an idiot box. Be an idiot only for 30 minutes or 1 hour. Be idiot, I am saying, but for some time, right? Or for the entertainment. Keep the inspiring pictures on the desk. Like these are the legends people. Those who have invented the Google, right? Are Dr. APJ, MS Dhoni and the Narayan Murthy and many more, right? Major distraction for the students. Let them use authentically. जितना चाहिए उतना यूज करो भाई. और उसमें भी इज इट समवेयर, मुझे ये नहीं पता चला कि अभी तक ऐसा ट्रेंड क्यों नहीं आया. जैसे हम अपनी हेल्थ को लेके चलते हैं कि हम लोग फास्टिंग करते हैं 12 hours, 8 hours, 14 hours. तो लेट्स डू फास्टिंग फॉर मोबाइल्स, नॉट टू यूज मोबाइल्स, राइट? ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि लेट्स डू दैट. So this is what I want to initiate ki let's do certain couple of hours we will not use mobiles. Yeah, this is my number I am sharing right now. I'll put it definitely right now in the chat box. And now it is your turn. You can ask. Before you ask, I want to hear that how the next 45 minutes go. Everyone. Now मैंने अभी तक चैट बॉक्स नहीं देखा था. I'll do the chat box right now. But before that again I'll say that what the 45 minutes will go. Now there is no lecture, right? तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 9:30 को वाइंड अप कर रहे हैं. If you have a one critical doubt, I don't mind to be there for 5 more minutes, right? And anyone else has a knowledge of that point, that question, that subject, I invite them to answer. It's a forum. Forum का पता है अगर आप, if you understand forum, you and me are equal and sharing each other's view rather than imposing. ऐसा ही होना चाहिए. No. Yeah. So this is your time where you can ask the doubts. Once you ask the doubts, मैं आपको 10 minutes का टाइम दूंगा. उसके बाद आंसर होने के बाद बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन समझो 10 to 15 मिनट्स में हम लोग वाइंड अप करते हैं. नाउ आई वांट टू क्रिएट समथिंग वेर इन आई वांट टू डायरेक्टली interact with one of the parent and ask set of the questions 1 2 3 4 who would like to share with me. मैं उसको पूछता हूं and the others at the same time वही questions का आंसर अपने पास लिखेंगे and let's create something different. I invite you to be there for that creative work, okay? And then I want to also interact with one of the student, any of you, एक student or एक parent, and I want to have some set of inquiries, okay? So get ready for that. Before that आपके questions को हम लोग address करते हैं. So now it's your turn. Come up with your questions one by one. Unmute करो और पूछ सकते हो, but before आप chat box में डाल दो.
वंस यू पुट इट इन द चैट बॉक्स, मैं आपको बताता हूं वन बाय वन. सो समवन इज आस्किंग जस्ट विच टाइप ऑफ द कोर्सेस. यस जस्ट, मुझे नहीं समझा विच टाइप ऑफ कोर्सेस यू आर आस्किंग फॉर. कैन यू प्लीज गो इन डिटेल, अनम्यूट करके मुझे क्या पूछना चाहते हो आप. ओके, तो आफ्टर डिग्री इन विच, जस्ट डिग्री किस में. नहीं नहीं, ओके. जस्ट अगर एनीथिंग बोलोगे तो मुझे बहुत कुछ सुनाई देता है. डिग्री इन नाटा मतलब आर्किटेक्ट हो गए, उसके बाद क्या, या इंजीनियरिंग के बाद क्या, या बीएससी इंजीनियरिंग के बाद. सो दिस इज अगेन नॉट द राइट टाइम. बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो. जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, मैंने 5 years ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब किया एंड देन मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया एंड मैंने मेरा करियर पूरा मैकेनिकल से आईटी में शिफ्ट किया एंड आई वेंट इनटू द आईटी डेवलपमेंट जॉब. तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. किसी को एंड्रॉयड ऐप में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर कोर्सेज करेगा. तो जस्ट मुझे बताना कि क्या अभी इन दिस 2021 में हमको डिसाइड करना चाहिए कि 2027 में आप कौन सा कोर्स करोगे. कैन यू टेल मी, है ना. आई गॉट इट. तो नॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट सब नॉलेज हमको जंक बना देता है, वो सब गूगल में मिल जाएगा. बी देयर. मैं 2021 में जिंदा हूं, आप भी जिंदा हो. 6 साल के बाद मिलेंगे 2+4 वाला पैटर्न के बाद, उस दिन वापिस पूछना, डेफिनेटली हम लोग उसको इंटरेक्ट करेंगे. ग्रेट, थैंक यू. जस्ट हर्षव शाह. सेट इज द वन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर फॉरेन स्टडीज. जो आपको 11th-12th अगर आप IB/IG बोर्ड से कर रहे हो या तो आप कहीं से भी 12th कर रहे हो और आपको 13th में जाना है, दैट्स कॉल्ड ग्रेजुएशंस के लिए आपको कोई कंट्री में अप्लाई करना है तो सर्टेन कंट्री मेजॉरिटी डिमांड्स दिस सेट का स्कोर, सो दैट यू हैव टू फुलफिल. आई पर्सनली सजेस्ट कि दैट इज नॉट द एज टू गो अब्रॉड, बिकॉज अब्रॉड में हर काम खुद से करना है, राइट. सो अब्रॉड में मैं चाहूंगा कि यू शुड गो आफ्टर ग्रेजुएशन, एटलीस्ट 12+4 या 12+3 के बाद जाना चाहिए. थैंक यू हर्षव. इज एम आई क्लियर विथ योर डाउट्स हर्षव? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड. हर्षव शाह. ग्रेट. Arib Patel. I am confused between computer engineering and information technology. Which to select in diploma? Absolutely correct question. Thank you for asking. So let me clear with computer engineering is more on hardware plus software. When I say hardware plus software, hardware मतलब आ गया microprocessor, microcontroller as well as programming language. When I say IT, it's a core प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नॉट प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं आएगा. तो किसकी डिमांड ज्यादा है आपने नहीं पूछा, मैं सामने से बताता हूं. डिमांड कंप्यूटर की ज्यादा है. क्यों? आई होप यू नो समथिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समथिंग कॉल्ड एज रोबोटिक्स, जो आजकल बहुत अपकमिंग है और ट्रेंडिंग है. अपकमिंग क्यों बोलूं मैं, ट्रेंडिंग है. तो अगर उधर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का नॉलेज रहेगा तो वो एक एडेड एडवांटेज बनेगा. अदरवाइज हम लोग अगर वो गांवठी भाषा में बोलूं, 19-20 का फर्क है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में. या देन आई एम कंफ्यूज हो गया, ये हो गया. त्रिशा इज आस्किंग सर आई एम कीन टू डूइंग AI और डेटा साइंस. And suppose if I am able to crack JEE main but fail to crack JEE advanced, then what would be the next step? Thank you Trisha, clear है मुझे. So let us assume that आपने JEE main कर लिया, at the same time आपने CET भी किया रहेगा Trisha. तो अगर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो आप CET बेसिस के ऊपर कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं. एक. सेकेंड, JEE मेंस के ऊपर से आप ऑल ओवर इंडिया की अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोटा आपका कितना रहेगा, 15% ओनली. ओके, तो शायद आपका मेंस का कोर अच्छा है तो शायद आपको कर्नाटका की कोई अच्छी कॉलेज में मिल सकता है.
और अगर आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं है तो आप सीईटी के बेसिस पे ले लेना महाराष्ट्र में, दैट मीन्स मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट कॉलेजेस मुंबई से है. And again, I am not interested right now to go with the which colleges, but of course, colleges based are in Mumbai. तो अगर आपको AI या डेटा साइंस में लेना है तो अभी डिग्री इंजीनियरिंग इन AI डेटा साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है मैनी कॉलेजेस में. तो आप जब तक 12th कंप्लीट करेंगे आपको और भी कॉलेजेस ये ऑफर करेगी. लेकिन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप सीईटी और मेंस के बेसिस के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो आपको शायद आईआईटी में एडवांस में ना मिला ऐसा. एम आई क्लियर टू सॉल्व योर क्वेरी त्रिशा, और यू वांट टू हैव एड ऑन दैट एनीथिंग? और बाकी किसी को भी इस क्वेरी के ऊपर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो. और मैं ना थोड़ा ये हो चुका है, क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग अ डाउट कि आप लोग को बोलना आता है क्या, मुझे सुनना है किसी से. त्रिशा, कैन यू प्लीज से समथिंग? मुझे थैंक यू नहीं सुनना है. आई एम क्लियर, ऐसा बोलो खाली, आई एम क्लियर. बहुत अच्छा लगा. चलो मैं सबको अभी बोलता हूं, प्लीज डू नॉट चैट, अनम्यूट करके 1 by 1 आपका क्वेरी डायरेक्टली पूछना. अभी मुझे सुनना है आप लोगों को. स्वयं पूछो अपना क्वेश्चन, मैं नाम बोलूंगा उसके बाद ही आप लोग खाली लिखना कि आई हैव अ डाउट. मैं आपका नाम बोलूंगा तो एक प्रोटोकॉल बैठेगा. स्वयं बोलो. ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग. यस, तो उसमें कैसा बनाया है उन्होंने रूल कि अगर आपने कंप्यूटर में लिया तो उसका सिमिलर ब्रांच कौन सा है, आईटी, तो आप आईटी में डेफिनेटली जा सकते हो. ओके, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में जा सकते हो. लेकिन आपने सिविल लिया था और कंप्यूटर में जाना है, दैट इज नॉट अलाउड विथ माई नॉलेज. एनीवन एल्स इन दिस ग्रुप, किसी को कुछ इसके ऊपर ज्यादा पता है तो कि सिविल से कंप्यूटर में जा सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं जा सकते, मुझे क्लियर है, तो नहीं जा सकते. सो दैट्स माई सेइंग, दैट्स माई कॉल. अगर आप डिप्लोमा लेते हैं तो थिंक ट्वाइस कौन सी ब्रांच लेनी है. और अगर आप में से किसी को भी जरा भी कंफ्यूजन है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू अबाउट विच ब्रांच टू चूज. आप मुझे पर्सनली कल परसों कभी भी व्हाट्सएप करके टाइम फिक्स करके पूछ सकते हो. आई विल हैप्पी टू हेल्प यू. इज दैट क्लियर स्वयं? और कुछ पूछना है उसमें? या प्लीज. या करेक्ट. सो द बेस्ट विल बी कंप्यूटर. नाउ मैं ऐसा कंप्यूटर बोलूंगा तो उसका मुझे क्या देना पड़ेगा, एक काइंड ऑफ वैलिडेशंस देना पड़ेगा. क्यों? सो इफ यू कैन सी, एक ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल, हर एक जगह पे लगेगा आपको. बेसिक ब्रांच इलेक्ट्रिकल आपको हर घर में लगेगा, हर फैक्ट्री में लगेगा, एवरी इंडस्ट्री में लगेगा. इलेक्ट्रिकल हमेशा राहुल द्रविड़ जैसा है, और ये आपकी जनरेशन में पुजारा. ओके, हमेशा चलता रहेगा ऐसा, इसको एवरग्रीन बोलते हैं. दूसरा है सिविल, वो भी एवरग्रीन चलता रहेगा. मुंबई में जगह नहीं है, रीडेवलपमेंट चलता रहेगा. ओके, वो भी हमेशा चलता रहेगा. कंप्यूटर ये सबके ऊपर है. अगर आप देखते हो, आप और मैं आज कंप्यूटर की वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं. आप अपना मॉर्निंग में उठते हो, आपका मोबाइल यूज करते हो, उसमें कंप्यूटर ब्रांच का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया एंड्रॉयड. आप अपना दरवाजा ओपन करते हो, दरवाजा क्लोज करते हो, आजकल उसमें सिस्टम आ चुका है, राइट. आप नीचे जाते हो, अपना बाइक लेते हो, कार लेते हो, कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, राइट. एवरीवेयर कंप्यूटर इज स्प्रेडेड. सो दैट इज द हाईएस्ट स्कोप. आपका 10 नेक्स्ट 6 years इज अबाउट कंप्यूटर्स. एट द सेम टाइम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये कंप्यूटर का एक और स्पेसिफिक ब्रांच जिसका स्कोप जबरदस्त है. लेकिन मैं अभी स्वयं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. कैन आई? स्वयं मैं पूछ सकता हूं आपको एक क्वेश्चन? या लेट अस कंसीडर कि डेटा साइंस हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, ऐसा लग रहा है कि अगला फ्यूचर उसमें है. तो
आपने पूछ लिया कि किसका स्कोप ज्यादा है। नाउ मैं आपको पूछता हूं, आर यू एंड हाउ विल यू मेक कैपेबल योरसेल्फ कि आप एआई डेटा साइंस में सक्सेसफुल होंगे? जो आपने पूछा कि सबसे ट्रेंडिंग कौन सा होगा 6 साल के बाद, तो मैं आपको पूछता हूं कि आप अपने आप को कैसे कैपेबल बनाओगे उसके लिए? कैन यू टेल मी? ओके। और हार्डवर्क मतलब मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाऊंगा, रात को 2 बजे तक जगता रहूंगा। इज दैट व्हाट यू मीन हार्डवर्क? हाँ हाँ। ओके। एंड आपने बहुत सारा क्रिएटिव किया और लास्ट मोमेंट में वो फेल हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट? या गो हेड स्वयं। ओके, आपने एक्स्ट्रा क्लासेस लिया, एक्सलेंट। और क्या कर सकते हैं आप? लिसन एवरी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फॉर ओनली स्वयं, दिस इज फॉर ऑल एज वेल एज पेरेंट्स। क्रिटिकल है ये, या स्वयं गो हेड। और क्या कर सकते हैं आप अपने आप को एलिजिबल करने के लिए? यस। ओके, ग्रेट। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। आपने काफी कुछ एक्सप्लोर किया। कैन समवन एड ऑन? यस, एनीवन? अनम्यूट एंड यू कैन टेल मी। और क्या कर सकते हो आप अपने आप को कैपेबल करने के लिए जी, जो सबसे ट्रेंडिंग में है, यू आर इंटरेस्टेड बट यू आर नॉट गेटिंग, क्या कर सकते हो और आप? यस, अपडेट योर सेल्फ। ओके। और कैन आई हियर समथिंग कॉल्ड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस? कॉल्ड, मैंने किया फेल हुआ, किया फेल हुआ, किया फेल किया, 100 टाइम्स मैंने एफर्ट्स दिया। आई नीड कंसिस्टेंट। आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द फेलियर, but I am consistently applying my all the efforts. मेरा next effort will be better than the last one, right? Everyone, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, सामने वाला 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, 6 मार रहा है, 4 मार रहा है, लेकिन मेरा फोकस इज ऑन द नेक्स्ट बॉल, कि मैं नेक्स्ट बॉल कैसा डिलीवर करूं जो लास्ट टाइम से बेटर हो। इज दैट समथिंग विच आई रियली अप्लाई फॉर? कोर्स तो ट्रेंडिंग में है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को कैपेबल कैसे बनाऊं? बाय डूइंग प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एंड यू नीड सम सपोर्ट फॉर दैट प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, इट्स नॉट इजी। आपके पेरेंट्स ने वो डील किया है, राइट, व्हेन दे वर द स्टूडेंट्स, right? So you need some support from the parents, from the friends, from the cousins, from the coach, from the professors. Demand the support. जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, डिमांड द सपोर्ट। अंकल, मैं डील कर रहा हूं, मेरे को आप गाइड करो। हाउ विल आई डू दैट? आई एम सेइंग अंकल, मतलब जो अंकल जो आपकी फैमिली में और शायद फील्ड में सक्सेसफुल है, कुछ तो होगा उनमें, तो उनका सपोर्ट लो आप एंड अपग्रेड योर सेल्फ। क्या कर सकता हूं मैं नेक्स्ट, सो दैट मुझे एक सक्सेस मिले, या जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे कुछ बेटर रिजल्ट मिले। दैट इज व्हाट यू कैन डू। ओके, ग्रेट। इज डिप्लोमा, अमी, अमी पूछो अपना क्वेश्चन, मुझे अभी सुनना है। इंटीग्रेटेड इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब कौन सा? ये एनएमआईएमएस कराता है वैसा? Okay, so I missed everyone. Thank you, Ami, for asking. NMIMS is the one university which offers after 10th 6 years का integrated engineering. मतलब 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री, सीधा 6 साल में बाहर निकलोगे आप एज एन इंजीनियर। तो वो 6 साल का है अमी, तो वो तो डिग्री करके आप बाहर निकलोगे, तो इट इज तो डेफिनेटली इज अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये डिप्लोमा और उसका कंपैरिजन नहीं होगा, ये 3 साल का, ये 6 साल का है। तो ये 3 साल के बाद आपको और 3 साल का डिग्री इंजीनियरिंग करना है, सो दैट इट विल बी इक्विवेलेंट। अमी, समझा? क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन एल्स? प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन हियर। नाम खाली पूछो, मैं आपको पूछता हूं, या क्वेश्चन नहीं डालना है, खाली नाम डाल दो, सो दैट आई कैन आस्क क्वेश्चन अनम्यूट करके। आई वुड लव टू हियर समवन फ्रॉम यू, सो दैट मुझे एग्जैक्टली पता चले कि स्टूडेंट्स यहां क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आई हैव अ डाउट, स्वयं गो हेड। हाँ,
हाँ, तो अभी ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे आंसर देने में थोड़ा ऐसा होगा कि देखो, NMIMS इज 4 lakhs पर एनम का कॉस्ट है उसका, आज 4 lakhs है। सेकेंड ईयर में वो कितना बनेगा, मैं 10% से गिनूं तो 4,40,000। थर्ड ईयर में 4,40,000 का 10% इज समथिंग कॉल्ड एज अनदर 44, मतलब 4,80,000। ऐसा करके जब भी आप 6 ईयर में पहुंचोगे योर कॉस्ट विल बी 6 lakhs। सब कुछ बंडल बनाओ तो 30 lakhs का पैकेज होगा आपका। 30 lakhs यू हैव टू स्पेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू हैव दैट मच अमाउंट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट इंटीग्रेटेड। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा ये रहता है, मैंने NMIS में मैं यूजुअली विजिट भी करता हूं। आई एम टीचिंग टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आई एम वेरी क्लोज टू द स्टूडेंट्स। मैंने स्टूडेंट्स को एक सर्वे फॉर्म बना के पूछा था कि व्हाई यू चूज NMIS। ओके, सो व्हाट आई गॉट फ्रॉम देम कि जिनको वो 11th-12th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं जाना है बट उनकी फिनेंशियल कंडीशंस अच्छी है, ओके, पेरेंट्स की, तो फिर वो उधर जाते हैं कि भाई ये सब झंझट में से जाओ। डिप्लोमा कैसा है, 3 years किया, बहुत एकदम इकोनॉमिकल है। आप ग्रोन अप होते हो विद द मुंबई यूनिवर्सिटी एंड देन बाकी का 3 साल दूसरी कॉलेज में डिग्री में जाओगे जो मुंबई यूनिवर्सिटी का है। नाउ NMIMS कैसा है, थोड़ा मुझे रिस्क ये नाम से लगता है कि पूरा हम लोग डिपेंडेंट हो गए NMIMS की ब्रांड पे। कल जाके एनी वन स्मॉल इंसिडेंट, आजकल सोशल मीडिया है, यू नो, सोशल मीडिया क्या बोलता है, अगर कुछ एनीथिंग वेंट रॉन्ग इन दैट यूनिवर्सिटी और उसका रेटिंग पूरा डाउन आ गया तो क्या करेंगे 6 साल में। तो दैट इज थोड़ा रिस्क फैक्टर लेके चलना है। एक कॉस्ट, दूसरा उसका ब्रांड नेम में कुछ इंपैक्ट हो गया तो दैट इज लिटिल रिस्क। यहां कैसा है, डिप्लोमा प्लस डिग्री करते हो तो आपने डिप्लोमा किया लेट से भगुबाई से, वर्तक कॉलेज से, कहीं से, डिग्री कॉलेज किया DJ सांघवी SP कॉलेज से, एंड देन यू हैव समथिंग यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि जब भी आप DJ सांघवी VJT या SP से करते हो तो उसकी ब्रांड नेम 25 years प्लस की है, सो दैट हैज एन इम्पैक्ट। तो मैं सीधा आपको स्वयं बोलता हूं कि मैंने आपको एग्जैक्टली यस नो का आंसर नहीं दिया, बट यस नो का आंसर मैं नहीं दे सकता और ना देना चाहिए, बट मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिया। विल दैट सॉर्ट इट आउट योर डाउट? ग्रेट। जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BE एंड BTech? हाँ बोलो स्वयं। हाँ बोलो। हाँ, Bhagubai is the best. Then Thakur College is a good name. Then we have Vivekanand. Then we have Sahan, Anchor, Chembur. स्वयं आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना होगा हाँ डिप्लोमा कॉलेज में। ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट ईयर तो अभी ऑनलाइन ही जाएगा, यू नो दैट दिसंबर तक सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं। लेकिन बाकी के 2 साल आपको जाना होगा, मतलब यू हैव टू ट्रैवल। बीइंग अ जस्ट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू मे हैव टू ट्रैवल टू द चेंबूर ऑल्सो, राइट? तो दैट यू हैव टू मैनेज। लिमिटेड डिप्लोमा कॉलेजेस है। Yeah. Just what is the difference between BE and BTech? Great question. All the Mumbai University gives you a degree of Bachelor of Engineering, and all autonomous colleges like IIT is autonomous, NMIMS is autonomous, KJ Somaiya is autonomous now. They give Bachelor of Technology. Yeah. Yes. Any question from the others? Then I would like to generate something for the parents and then students. I get an opportunity to interact with them. तो मैं डेफिनेटली उनसे बात करना चाहूंगा। यस, सारे लोगों ने वीडियो बंद रखा है एंड आई एम ओके विद दैट, आई डोंट माइंड इट। अगर इफ यू हैव अ नेटवर्क का इश्यू, अदरवाइज यू शुड कीप योर वीडियो ऑन सो दैट एक कनेक्टिविटी बनता है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। अगर आप वीडियो रखते हैं तो इट विल बी ग्रेट। लेट मी हैव एन इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स दोज इफ यू वांट। मुझे कोई एक पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स एक बार स्टूडेंट लिखो ना जरा, किसके पेरेंट्स है यहाँ पे, एक बार चैट पे लिखो ना प्लीज। तो मुझे पेरेंट्स से बात करनी है तो मुझे पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए। एंड बाय द वे मैं पेरेंट्स की एग्जाम नहीं ले रहा हूं प्लीज, सो पेरेंट्स डोंट हेजिटेट। सो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग नाउ। अभी शेयरिंग की जरूरत नहीं है, राइट? स्क्रीन का। ऑल राइट, या
मानव, यू हैव अ डाउट, बोलो मानव, गो हेड. हाँ, बेस्ड ऑन योर, ग्रेट ग्रेट मानव, थैंक यू. बेस्ड ऑन योर 12th का, अरे TY का स्कोर, आई रिपीट, बेस्ड ऑन योर TY का स्कोर, you will get an admission in the second year of engineering. Let us assume that आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आपको डिग्री कौन इंजीनियरिंग में B ग्रेड कॉलेज में जाना पड़ेगा और मे बी C ग्रेड में जाना पड़ेगा. एंड इफ यू गेट द गुड स्कोर इन द डिप्लोमा थर्ड ईयर, देन यू विल गेट द A ग्रेड का कॉलेज. एवरी कॉलेज हैज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोटा, लेट्स से 10%. मैं ऐसे एक फिगर बोल रहा हूं, तो वो कोटा रहता है. इनफैक्ट देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड विद्यालंकर in somewhere वडाला, जिसमें एक पूरा डिवीजन है डिप्लोमा टू डिग्री के लिए. वन डिवीजन ऑफ 60 स्टूडेंट्स एंड इट हैज अ गुड ब्रांड नेम इन द कॉलेज एटलीस्ट. तो आपको कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेस्ड ऑन योर थर्ड ईयर का स्कोर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, एनी ऑफ द पेरेंट would like to work with me, मुझे उनको कुछ set of questions पूछना है. Those who have a bad experience in their last year, जहां पे स्टूडेंट्स पूरे साल घर पे थे और उनको bad experience रहा है, so मुझे उनके साथ वर्क करना है. So if you allow me, otherwise हमारा वेबिनार कंप्लीट है. Yes, anyone, parent would like to work with me? I'll count 1 to 10 में. It will be really encouraging if you allow us. Great opportunity to interact. Something will open up. And if no, then absolutely fine. आप अपना doubts continue कर सकते हैं. Students अपना doubts पूछ सकता है. Anyone has? Yes, done. और किसी को कुछ पूछना है? Most of the doubts has been cleared from that. I would like to thank each one. Yeah, go ahead, Swayam. 11th-12th में मुझे ऐसा दिखता है कि आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज की ब्रांड नेम मैटर नहीं करती. मीठीबाई इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, सबको पता है. ठाकुर कॉलेज इज अ गुड नेम. लेकिन क्या करेंगे अगर हम 11th-12th कर रहे हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो दिस डेज मुझे ऐसा दिखता है, बाप रे, आप ट्रैवलिंग करोगे, कॉलेज में जाओगे. लेट्स से केसी कॉलेज आपने ले लिया, उधर गए एंड देन चर्च गेट तक आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हो. You are coming back, then you have a coaching classes to go and then come back and then you have a personal time to study. कैसे मैनेज करेंगे? सो आइडियली ऐसा बोलते हैं कि जिसको रियली करियर बनाना है तो इंटीग्रेटेड इज द बेस्ट चॉइस. हाँ, जिसको फिनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज जाएगा और क्लासेस अपनी चॉइस का देखेगा, या तो खुद से भी पढ़ेगा, बट थोड़ा बहुत कॉलेज के टीचिंग पे डिपेंडेंट रहेगा, तो फिर वो जा सकता है कॉलेज में. अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए. ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप कॉलेज ना जाके यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो स्टडी में. यस, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? वी हैव अजीत सेट्टी, उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा. वी हैव मित्तल देसाई, उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा. मानव भंसाली ने नहीं पूछा. देन वी हैव त्रिशा ने पूछा. अरीब ने पूछा. दीपाली ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा. यस, एनीवन, एनी डाउट? अरीब, यू हैव एनी डाउट? Done. Then definitely we will leave. Mauli already left. So if you don't have a doubt, I really would like to acknowledge each one of you to spare a time to listen to me. And this is my privilege to share whatever I had. And in future, if you want to ask anything, definitely you can connect me. Trisa का एक doubt है, sir. JEE main in maths. There are more geometry or algebra. I am not the right person. Samit, are you there? Samit, he is my friend. He is also there. वो आया था बीच में. Samit is there. Samit,
समित है? ओके, इज नॉट देयर. सो त्रिशा, आई एम सॉरी, मेरे को अभी इतना डिटेल में नहीं पता, बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैं समित इज माय फ्रेंड, या ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर है जिनको पूछ के मैं आपका क्लियर कर सकता हूँ कि भाई ज्योमेट्री ज्यादा है कि अलजेब्रा ज्यादा है. बट इज दैट अ वरी फॉर यू टू चूज 11th एंड 12th, त्रिशा? ऐसा कुछ है क्या? एनीथिंग यू आर डीलिंग? आपका आई गॉट इट, आई गॉट इट. बट बाय द वे, मैं बताता हूं, मतलब वन ऑफ द माई पर्सनल शेयरिंग, मेरा बायोलॉजी बहुत वीक था एंड हम लोग के टाइम पे ये सब नहीं होता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो वी हैव 12th के बेसिस पे मिलता था. सो यू नो द रिजल्ट व्हेन केम, आई गॉट द हाईएस्ट इन बायोलॉजी. किसी को ऐसा हुआ है क्या, एनी ऑफ यू इन 9th ग्रेड, जो सबसे आपका पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए? एनीवन? ऐसा हुआ है किसी को? सो मेरे साथ वो हुआ था, यू नो त्रिशा. सो ये सब हमारा कैसा होता है, या आर्यन, आई गॉट इट. सो ये ऐसा होता है, आई मीन नाउ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मेरे को बायोलॉजी नहीं जमता था, मुझे को पसंद नहीं था, मेरे को डर लगता था, शायद उसी के लिए मैंने ज्यादा पढ़ा, और वो ज्यादा पढ़ा तो शायद उसका स्कोर ज्यादा आ गया, यू नो. तो त्रिशा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आपको एक में ज्यादा है, दूसरे में कम है. यू कैन मेक इट बैलेंस बाय गेटिंग अ गुड प्रोफेसर इन दैट सब्जेक्ट. मेरे को एक और चीज अभी ध्यान में आ रहा है, माय गॉड, आई मिस्ड आउट, कंप्लीटली मिस्ड आउट. जो मैंने पॉइंट में लिखा था, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू शेयर. अगर आप यस लिखते हो तो ही मैं पूछता हूं हाउ टू चूज द कोचिंग क्लासेस दे. मैंने एक रखा था कि ये मैं आपको गाइड करूं. विल यू अलाउ मी टू शेयर दैट? प्लीज शेयर. अगर क्योंकि एक टाइम आ गया कि अरे हम लोग खत्म हो रहा है तो जाते हैं करके, यू नो. थैंक यू, आई गॉट इट, आई गॉट इट एवरीवन. तो यहां पे मैं आपको पूछना चालू करता हूं. चलो, हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से कोचिंग क्लासेस में जाना चाहिए? बाय द वे, मैं यहां किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एक ना किसी को डिमोशन भी करना है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि हाउ विल यू डिसाइड कि कौन से कोचिंग क्लासेस में जाना चाहिए? आप क्या क्या देखते हो आप? यस, एनीवन? वे क्विकली बताना, अनम्यूट करके बताना चालू करो. क्या देखते हो आप? यस, व्हाट यू चूज? क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखते हो? पास्ट रिजल्ट, ओके अजीत, आई गॉट इट, थैंक यू. और क्विकली क्विकली एवरीवन, हाउ यू डिसाइड कौन से कोचिंग क्लासेस में जाना चाहिए? यस, एनीवन? सॉरी, रिव्यूज, ओके, वाओ, ओके. और एनीवन? पास्ट रिजल्ट आया, रिव्यूज आया, मे बी आपने किसी का नाम सुना रहेगा. तो मैंने ऐसा कुछ सोचा था कि भी अगर मैं कोई कोचिंग क्लासेस में जाऊंगा ना, तो मैं उनका फीडबैक लूंगा कोई रिलेटिव से. मेरा स्क्रीन शेयरिंग नहीं है ना, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूं, जस्ट अ मिनट. जस्ट आप सुनना, ओके. आई डोंट वांट कि आप ऐसा ही करो, लेकिन मुझे ऐसा दिखा. आई टेक द फीडबैक फ्रॉम माई रिलेटिव्स, पीपल अराउंड मी, माई सीनियर्स, एंड मैं उनको पूछूंगा. लेकिन वो सीनियर ज्यादा ओल्ड भी नहीं होना चाहिए, या मेरा ब्रदर सिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए 10 साल पहले उसने एक क्लासेस से किया था, 10 साल के बाद मैं उसी क्लासेस में गया, पथेटिक पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है. तो 1 ईयर या 2 ईयर, नॉट ओल्डर देन दैट, वो फीडबैक काम का नहीं है. एम आई एबल टू आई मीन क्रिएटेड? ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? एनीवन? या, ओके, ग्रेट. इज इट द फाउंडर इन द प्रोफेसर्स टीम? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या वो क्लासेस जिसका है वो अभी भी पढ़ाता है क्या? अगर वो नहीं पढ़ाता है और ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहा है, देन देयर इज अगेन अ काइंड ऑफ द पर्सन जो शायद आपको जो पढ़ाने आ रहा है उसको पर आवर का कॉस्ट मिल रहा है, वो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है. आई मे बी रॉन्ग एंड आई विल बी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने ये देखा है. दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर, कि कोई प्रोफेसर आता है, पढ़ाता है. इनफैक्ट मेरे क्लासेस में हुआ है, मैं अपफ्रंट बोलता हूं.
मुझे स्टूडेंट बोलता है कि सर ये प्रोफेसर्स तो टाइम नहीं देते, आपके पास ऐसा कैसा टाइम रहता है कि मैं अभी जब अंधेरी ब्रांच में रहता हूं, मेरा 9 o'clock लेक्चर कंप्लीट हुआ एंड आई एम देयर रिलैक्स एंड लिसनिंग टू स्टूडेंट्स डाउट. एक स्टूडेंट अपफ्रंट आके बोलता है, आई विल शेयर द नेम ऑल्सो, एंड देन से कि सर I never found Vikas sir is solving my doubts. He is always in hurry to catch the train. I said, I got it. Maybe he's staying in Bhayandar, coming at Andheri, and then उसको जाना है. But then that should not happen. And the next day मैंने वो प्रोफेसर को पूछा, सर what is happening? Are you dealing with anything? तो नहीं प्रज्ञेश, ऐसा कुछ नहीं है. Then why are you not there available? तो नहीं, मैं रहता हूँ. See, मुझे वो बोल रहे मैं रहता हूं, स्टूडेंट बोल रहे सर नाउ व्हाट इज द ट्रूथ. मुझे समझ गया, सर मेरे को कुछ और बोल रहे हैं बट स्टूडेंट को ऐसा दिखा रहा है कि मैं लेट हो रहा हूं. ये नहीं चलेगा, राइट? 2 साल में मैंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया. आई पुट माई ऑल प्रोफेसर्स एज अ पार्टनर्स. अभी वो जाएंगे ही नहीं, पार्टनर बना दिया उनको. उनका खुद का क्लासेस है, वो अपने क्लासेस से कोई भागेगा क्या? क्योंकि मेरे को दिखा मैं क्यों नहीं जा रहा था और वो क्यों जा रहे थे. Are you able to listen what I want to say? मेरा मैसेज समझा क्या आपको? I am the founder. I am the founder. I'll give my best to my students. मेरा नाम स्टैक पे लगा हुआ है भाई. कल जाके कोई पायोनियर में आएगा नहीं अगर मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस दिया तो. Then that's the thing which I am looking forward की. is founder in the professors team अभी भी वो पढ़ा रहा है क्या? देन डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन उसका अलग है कि कोई नया क्लासेस कल ही खोला और वो खुद ही फाउंडर है, वही प्रोफेसर, डज नॉट मीन कि वो अच्छा ही है. लेकिन दिस कुड बी द वन ऑफ द क्राइटेरिया विच यू ऑलवेज चूज. आर देयर गिव द इंपॉर्टेंस टू योर कंसर्न एंड द क्वेरी. इनफ टाइम देते हैं क्या? राइट, इंक्वायरी में भी आपको पता चल जाएगा. व्हेन एंड हाउ दे विल डू द ऑफलाइन लेक्चर्स. ये पर्टिकुलरली ये सिनारियो में पूछना बहुत जरूरी है. अगर वो घुमा फिरा के आपको आंसर दे रहे हैं मतलब देयर इज अ डाउट. बहुत सारे कोचिंग क्लासेस आजकल ऑनलाइन चला रहे हैं, उनकी खुद के क्लासेस लिए भी नहीं है आज की डेट में, उनके पास ऑफिस ही नहीं है क्योंकि उनको रेंट लगता है. देन दिस इज रिस्की. क्या ऑफलाइन आने के बाद वो कहाँ जगह लेंगे, आपको कैसे मैनेज करेंगे, आपके घर से दूर होगा तो क्या करोगे? दिस कुड बी द प्रॉब्लम. If you are joining for the IIT coaching classes, is the professor IIT pass out है? या at least 1 or 2 professors are there in the team of IITs? तो then they will provide the best of coaching. मेरा एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया जिसने मुझे बताया कि I am not able to cope up with the IIT mains. And then मैं उसको पूछते पूछते मुझे रियलिटी समझा कि the professors are very expert in CET. But not good at the IIT, and hence the student is not getting interest in that, right? So that is what very important, everyone. So these are my criteria of selecting. मैं रिव्यूज तो देखूंगा लेकिन रिव्यूज को फाइनल डिसीजन नहीं दूंगा. बाय द वे, यू पीपल आर मोर टेकी. आपने बादशाह का कुछ सुना रहेगा, वो एक सिंगर है, राइट? कि उसने अपने फॉलोअर्स पैसा देके इंक्रीज किया था. यस, एनीवन नोज दैट? एनीवन? किसी ने सुना था? तो क्या आपके रिव्यूज भी पेड करके मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं मेरी वेबसाइट के ऊपर? यस और नो? यस, कर सकता हूं. तो मैं उसको मेरा फाइनल जजमेंट नहीं बनाऊंगा, राइट? लेकिन या वन ऑफ द क्राइटेरिया मैं जरूर रखूंगा. लेकिन आप फाइंड आउट करोगे तो आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई मिल जाएगा जिसने उस क्लासेस किया और आपको बताएगा दिस इज द बेस्ट, आई हैड अ बेस्ट एक्सपीरियंस. सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने भी फीडबैक दिया उससे प्रोफेसर का नाम लो. 1 2 3 4 यही प्रोफेसर पढ़ा रहे क्या वापिस? यहाँ कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री में 1 साल में 2 साल में प्रोफेसर अपना खुद का क्लास पुराने क्लास के सामने ही खोल के बैठ जाते हैं. ओके, सो दैट शुड नॉट हैपन. सो यू शुड ऑलवेज बी विथ प्रोफेसर्स. जो नाम है वो नाम है क्या, वही नाम के साथ आपको पढ़ना है. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील दैट. जब भी आप IIT चूज करते हो तो मेरा एक और मैसेज रहेगा कि आर यू एबल टू कोप अप विद दैट सिलेबस. नहीं तो जबरदस्ती का IIT ज्वाइन नहीं करना प्लीज. आजकल एक फैशन बन गया है कि IIT करेंगे. IIT तभी करना चाहिए इफ यू हैव दैट मच कैपेसिटी एंड दैट मच. मैं ऐसा जरा भी नहीं बोल रहा हूं, मेरे कोई कॉन्वर्सेशन में मैंने ऐसा नहीं बोला कि IIT इज डिफिकल्ट. इट्स अ चैलेंजिंग,
और चैलेंजिंग हमारा माउंट एवरेस्ट भी है, राइट? ओके, मैं जब भी हिमालय पे जाता हूं तो मुझे उतनी तैयारी करनी है, आई हैव टू फेस दैट। लेकिन मैं नेशनल पार्क में ऊपर गांधी टेकरी पे जा रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर मैं जा पाऊंगा, आई एम वेरी क्लियर। लेकिन वही गांधी टेकरी किसी और के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको अस्थमा है, नहीं जा पाएगा। हेलो, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड चेक योर ओन कैपेसिटी। और या तो ज्वाइन किया, रात दिन एक करो एंड गो फॉर दैट 2 years ऑफ योर लाइफ, राइट? 2 years entirely change, completely roller coaster, right? नीचे ऊपर completely, लेकिन अपना बेस्ट दो 2 years। किसको फर्क पड़ता है आपने व्हाट्सएप को रिप्लाई दिया नहीं दिया, किसने देखा आपका स्नैपचैट, किसने देखा आपका फेसबुक? 2 साल के बाद डबल रिप्लाई दे देना उन लोगों को। लेकिन ये 2 साल अपना बेस्ट ऑफ प्रोवाइड करो, अगर आप चूज करते हो 11th and 12th। ऑल राइट, yeah, with that, anyone else have a doubt? Definitely you can ask me, और else हम लोग stretch नहीं करेंगे। It is perfectly fine in whatever the space you are. We will wind up here itself. I'd like to thank anyone wants to share anything what you take away from this webinar. I would like to say, Aslesa, can you please post the link for the feedback? Just आपका 1, 2, 3 मिनट में लूंगा, 1, 2, 3, 3 मिनट भी नहीं लगेगा। Aslesa, are you there? Yeah, please post the link. Everyone, I request you to fill up the feedback form, please. Just मुझे एक आइडिया आएगा where I stand. At the same time, आप लोग meanwhile मुझे बता सकते हो, any of you, what you take away from this webinar. क्या सुना आपने, क्या मिला, क्या दिखा, या क्या क्लियर हुआ? Anything would like to share? Anything in Hindi, English, Marathi and Gujarati, these 4 languages I understand. Yeah, anything would like to share? Anything, किसी को कुछ बताना है? How can we understand our capacity if we are eligible for JEE? Absolutely, Deepali. This is a crucial question. Samit है इधर? नहीं। Arnib, clear about what you want to select now. Sir, I have one more doubt. मानव, उसके पहले दीपाली। या दीपाली, see, दीपाली, आपको एक एनालिसिस करना चाहिए अपनी वो प्रोफेसर्स की टीम के साथ जिन्होंने आपको 9th-10th कराया। कैन यू प्लीज अनम्यूट दीपाली चौहान, जिसने लॉग इन किया है अभी? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ दीपाली? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? सॉरी, योर, हाँ, आई गॉट इट। व्हाट्स योर नेम? यू सेड Pinga. How you spell it? Pingaksh. Wow, क्या नाम है? What is the meaning of that? Wow, great. मेरे को फर्स्ट टाइम सुना। Wow. Okay. Yeah. So this is good question and this is important as well. तो मैं चाहूंगा कि पिंगस अपने 9th-10th जो प्रोफेसर्स के साथ किया है ना, उसको ना कुछ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपके डाउट्स पूछने में, अंडरस्टैंडिंग में उनको एक सेंस आया है कि ये बंदा का क्या कैपेसिटी है। और पेरेंट्स, दीपाली जी, मैं आपको चाहूंगा कि आप उस प्रोफेसर को 1-on-1, फेस टू फेस मिल के डिस्कस करना, क्योंकि वो लोग को पता है आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता है। 10th का तो रिजल्ट चलो आया नहीं है, प्रीलिम मैटर नहीं करता है, कोई रिजल्ट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो पर्सन ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है वो बता सकता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है पढ़ने की एज वेल एज अंडरस्टैंड करने की। एक होता है पिंगस की मेरे को कुछ भी नहीं आता लेकिन आई हैव अ पैशन ऑफ डूइंग आईआईटी। जब भी मैं पैशन बोलता हूं तो आपको पेरेंट्स को पार्टनर बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स उसको, पिंगस को, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सपोर्ट करेंगे। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आप कौन से स्पेस में हो, लेकिन बी देयर एंड डू दैट। ऐसा
तो मैं चाहूंगा कि आपका वो पर्सन जिन्होंने आपके साथ 1 साल 2 साल स्पेंड किया वो आपको डिसाइड करके बताए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, रादर देन बाय गिविंग वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन कोचिंग क्लासेस इन एडवर्टाइजमेंट्स। वो कुछ डिसाइड नहीं करता, वो तो आपको बता देगा 70% स्कॉलरशिप। यस, ऐसा बहुत सारा एडवर्टाइज में देखता हूँ, 70% स्कॉलरशिप, एंड देन पेरेंट्स उनको कर देते। मैंने ऐसे भी एग्जांपल्स देते हैं, 6-6 लाख का कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के बाद उनको आईआईटी नहीं समझता, देन दे डू पुट इट इन द प्राइवेट ट्यूशंस, देन वन मोर ट्यूशंस। इतना स्ट्रेस मत लो बाबा, देन लीव इट। करना है करो, पैशन से करो, शौक से करो, फिर देखा जाएगा जो रिजल्ट आएगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट, लेकिन आपका एक्शंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शंस आई होप यू अंडरस्टैंड, कंटिन्यूअसली वेर एवर यू आर। मैं आज डाउन हो गया, लेकिन कल मॉर्निंग में वापस रेडी है विथ सम एक्शंस, है ना? सो आई वांट दैट। एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट? तो मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेसर्स को मिलना जिनके पास वो पढ़ चुका है 9-10, तो वो आपको काफी आइडियाज देगा कि क्या लेवल पे कर सकते हैं। एंड मैं ये भी चाहूंगा कि ये खाली उसके ऊपर डिसाइड नहीं करके मेरे जैसे और 3-4-5 लोगों को मिलके डिसाइड करे, रादर देन कोचिंग क्लासेस में नहीं जाना। बट ऐसे लोग जो कोचिंग क्लासेस से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन वो आपको गाइड कर सकते हैं कि जिन्होंने आईआईटी में अभी 1-2 साल में एडमिशंस लिया हुआ है, वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं कि मैं ये डील कर रहा था, है ना? अच्छा, अश्लेषा ने एक लिंक पोस्ट किया है, इफ यू कैन सी इन द ग्रुप। उसमें आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपको यस नो लिखना है, 1-2 लिखना है, दैट्स इट। आई एम नॉट आस्किंग एनी लेंथी क्वेश्चंस, आई डोंट लाइक पर्सनली। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फिल अप द फीडबैक फॉर्म एंड देन यू कैन डेफिनेटली लीव एज एंड व्हेन यू वांट टू लीव। मैं यहाँ इसके लिए अभी भी हूं कि स्टूडेंट अभी भी डाउट पूछ रहा है, एंड मेरे लिए एक स्टूडेंट भी अगर पूरे वेबिनार में होता ना तो भी मैं उसको 1.5 आवर देता, बिकॉज आई एम हियर फॉर द सेम, फॉर द थर्सडे इवनिंग। या मानव, पूछो मानव। वाव, ओके, ग्रेट। सो डीम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी अभी डे बाय डे अपना वर्कलोड कम करने के लिए कुछ कुछ कॉलेजेस जो कि अपना खुद का एक ब्रांड नेम बना चुकी है, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करती है कि हमको हमारा खुद का यूनिवर्सिटी बनाने को परमिशन दो, जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने आजकल देना चालू किया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा एनएल कॉलेज जो है, एनके कॉलेज बोलते हैं मलाड में, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी नील के अपना खुद का डीम यूनिवर्सिटी बना दिया। मैं आपको बताऊं, केजे सोमैया विद्या विहार, वो डीम यूनिवर्सिटी बन चुका है, राइट? एनएमआईएमएस में एनएम कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है कॉमर्स में, लेकिन इंजीनियरिंग में वो डीम यूनिवर्सिटी में आता है क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक अपना यूनिवर्सिटी बना दिया। तो ओवरऑल अर्लियर वो मुंबई यूनिवर्सिटी में थे, अभी वो खुद हो गए हैं। तो वैसी ही डीम यूनिवर्सिटी में जाना जिसकी ब्रांड नेम है, वैसी डीम यूनिवर्सिटी में नहीं जाना जिसकी ब्रांड नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। इन दैट केस मुंबई यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी गुड ब्रांड नेम, तो फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में ही रहना। एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट मानव? ग्रेट, थैंक यू। So anyone else has any doubt? All the doubts cleared. Thank you very much everyone. I would like to quit here as everything is complete. Thank you so much to be here. In case anything comes, you can WhatsApp me. मैं मेरे फ्री टाइम में रिप्लाई दे दूंगा। कॉल में इसके लिए अवॉइड करता हूं कि मेरा टाइम आपका टाइम आपको पता नहीं है, राइट? इफ इट इज क्रिटिकल, मुझे ऐसा दिखा, मैं आपको मैसेज में ही लिख दूंगा, यू कैन कॉल मी इन दिस एंड दिस टाइम, राइट? तो आप लोग का मैं डाउट्स डेफिनेटली मेरे कैपेसिटी इन टाइम एंड फ्रेम आई कैन डेफिनेटली सॉर्ट आउट। थैंक यू so much to be here. And Jignya, Aslesa, thank you so much for providing all the support which required to provide this webinar. Yeah. Thank you everyone. Goodbye and take care. Chalo. Bye.